Asha, Center for Educational Research and Training, Mumbai. And I welcome all of you in today's session of Ask the Expert Season 3. और आज हम लोग बात करेंगे चिंता की या एंजाइटी जिसे हम लोग कहते हैं. I think we all experience anxiety every day for different reasons, different kinds of symptoms, different kind of reasons. So we will be talking about कि why do we get these anxiety attacks और हमें चिंता क्यों सताती है और उसका हम क्या उपाय ढूंढे. ऐसा कहते हैं कि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को. तो ऐसा हमें जिंदा रह के चिंता इतनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो डॉक्टर आई है, शी इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, जो आज हमें बहुत से ऐसे उपाय बताएंगी कि जिस वजह से हम लोग चिंता से मुक्ति पाएंगे. तो लेट मी वेलकम आवर टुडेज एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली अजिंक्य. सो वेलकम डॉक्टर दीपाली. और मैं क्विकली इनके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगी. सो शी इज द डायरेक्टर मास्टर योर माइंड सेंटर फॉर क्लिनिकल हिप्नोसिस, and her specialty, she is a physician, psychotherapist and a clinical hypnotherapist certified by International Medical and Dental Hypnotherapy Association USA. and उनकी experience इतने बहुत vast है, almost 18 years of experience, where after completing MBBS she finished her postgraduate training in preventive medicine from the prestigious St. GS Medical College and KEM Hospital in Mumbai. She is practicing as physician and therapist since 18 years. She did her master's in psychotherapy, which enabled her to combine her psychotherapy skills with clinical hypnotherapy for impressive results. She is a specialist in psychotrauma therapies, having trained in EMDR from EMDR Association India. She has an MD in alternative medicine and has been awarded the Gem of Alternative Medicine. She has been honored for her services in the field of clinical hypnotherapy by many prestigious social organizations like Lions and Rotary Club. In January 2020, she has published her book on medical hypnosis. This is the first book on medical hypnosis written by Indian authors. So, Doctor, welcome once again. And I'm really curious to know what is this medical hypnosis. But before that, let's talk about anxiety. And if you can just, help us out with what is this actually anxiety and when it turns into a disorder. Because I think everybody, हम कुछ ना कुछ चिंता करते ही रहते हैं. We all go through this anxiety every day. But when it becomes serious, we don't realize. So if you can throw some light on that, it will be very nice. Sure. Over to you, Doctor. Yes. Thank you so much, first of all, Parisa Asha and Ms. Aarti, for inviting me to talk on this topic, which is really अभी तो सभी लोग जैसे आपने बोला कि चिंता में ही है. And very first question that you asked me, it's very, क्योंकि सभी चिंता कर रहे हैं, तो ये चिंता से डिसऑर्डर कभी बन जाता है. मतलब जो एंजाइटी हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे एंजाइटी क्या है, मामूली है, हर किसी को होती है, उसमें से कोई बड़ी बात क्या है. और कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो डिसऑर्डर है, इसको आपको बात करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. तो ये फर्क क्या है, कभी ये चिंता से बीमारी बन जाती. तो एंजाइटी, ये नॉर्मल एंजाइटी भी हो सकती है जब भी हम कंट्रोल में है, हमारे थॉट्स के कंट्रोल में है, हमारे इमोशंस के कंट्रोल में है, हम अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारी सोच हमारे कंट्रोल में. पर ये सोच जब भी या फिर इमोशंस जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमारी ये एंजाइटी, हमारी ये चिंता हमको हमारे डेली एक्टिविटीज में हैम्पर करने लगती है. मतलब अगर बड़े हैं तो ऑफिस जाने में उनको दिक्कत होती है, बार बार वही सिर्फ सोचते रहना, या बीमारी के बारे में बार बार सोचते रहना, काम के बारे में बार बार सोचते रहना, या अगर कोई एग्जाम है तो पढ़ाई के बारे में मेरा कैसे होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सब सोचते रहना. ये जब भी बढ़ जाता है और ये आपके सोशल पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करने लगता है. जैसे कोई ऑफिस जा रहा है तो वो ऑफिस से छुट्टी लेगा, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने को ही तैयार नहीं होंगे, या उनका पढ़ाई में मन कम लगने लगेगा, काम में मन कम लगने लगेगा, उनको बार बार सोचने की, या फिर उसका असर उनके नींद पे, उनके एपेटाइट पे, भूख पे भी लगता है.
ये सब चीजें अगर 10-15 दिन से ऊपर होने लगी तो डेफिनेटली ये डिसऑर्डर है जिसकी फिर जांच करना जरूरी रहता है। और ये हम कैसे देखें कि ये सोच बराबर है कि मेरी सोच कुछ बीमारी में बदल गई है। तो जो हम नॉर्मल एंजाइटी से डिसऑर्डर की बात बोलते हैं, तो ये एंजाइटी तो थोड़ी तो चाहिए हमको, तभी हम मोटिवेट होंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारे तंतु वाद्य रहते, सितार या गिटार। तो जो भी म्यूजिशियन है वो परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाता है, तो वो पहले चेक करता है कि ये जो वायर है वो दोनों एंड्स उसके टाइट है कि नहीं, बराबर की बराबर म्यूजिक दे रहे हैं कि नहीं। अगर वो बहुत टाइट होंगे तो बहुत हार्श म्यूजिक हो जाएगा, और अगर बहुत ही वो तार ढीले होंगे तो म्यूजिक आएगा ही नहीं। पर अगर बराबर उनमें टेंशन होगा तो एक परफेक्ट म्यूजिक आ जाएगा। सेम हमारे सोच में रहता है कि हमारी सोच एकदम ढीली हो गई, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाई देख लूंगा, जब भी एग्जाम होगा तभी मैं कर लूंगा, या क्या करना है, अरे कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, चलो जाओ ऐसे। जो ये जो एकदम ढीली सोच है, मतलब एकदम ढीली टेंशन, टेंशन ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं लेंगे। और इससे उल्टा है कि एकदम टाइट टेंशन, ज्यादा टेंशन लेना, मतलब अरे कैसे होगा, ये हुआ तो, वो हुआ तो, हमेशा जो निगेटिव होगा वही सोचना, और जो ज्यादा करके वर्स्ट होना है वही सोचना कि अरे नहीं, अगर मैं थोड़ा सा छाती में दर्द में मर गया तो ये हार्ट प्रॉब्लम है क्या, या फिर मैं एग्जाम में एक एग्जाम क्लास में एक आंसर नहीं दे सका, मतलब मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो अगर ऐसी वर्स्ट सोच होने लगी तो वो टेंशन ज्यादा है। तो परफेक्ट टेंशन क्या है? परफेक्ट टेंशन मतलब ये सोच कि हाँ डिफिकल्टी है, सिचुएशन है, पर मैं ये सिचुएशन में मैं क्या कर सकता, हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, मैं जो मेरा जॉब है वो मैं ठीक से कर पाऊंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा काम वैसा ही बेस्ट रिजल्ट है। जो हमारे बेस्ट एफर्ट्स है वो हमारे रिक्वायर्ड एफर्ट से मैच करेंगे, दैट इज द प्रॉपर टेंशन। ओके, सो आपके हिसाब से चिंता करना मतलब इट इज रिक्वायर्ड, नहीं तो अगर हम लोग चिंता नहीं करेंगे या फिर सोचेंगे नहीं तो फिर हम लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे, बराबर? चिंता से हम अगर चिंतन करेंगे तो उसका ज्यादा असर हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि वी सी आई डोंट थिंक एक भी मिनट ऐसा जाता है कि जहाँ पे हमारे मन में कोई ख्याल नहीं आते। देर इज नॉट अ सिंगल मिनट कि वी आर यू नो विदाउट एनी थॉट्स। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, हम लोग सोचते हैं, जो नहीं सोचना है वही ज्यादा सोचते हैं। यस। और उसका मूल कारण होता है कि चिंता करना, बिकॉज वी कम अक्रॉस, जैसे डॉक्टर दीपाली यू आर अवेयर कि वी आर रनिंग दिस पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड चाइल्ड, it's a mental health helpline specially to help parents and children to overcome उनके जो जो issues है, behavioral issues है, academic concerns है, या फिर उनके एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज है, डिप्रेशन, अग्रेशन, जो कुछ भी, एंगर मैनेजमेंट, जो कुछ भी बच्चों से जुड़े हुए जो इश्यूज है उसका हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। वी हैव आवर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ऑन बोर्ड, और ये कम्प्लीटली फ्री सुविधा हमने उपलब्ध करके दी है विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ कैपजेमिनी। तो हमें बहुत से ऐसे फोन कॉल्स आते रहते हैं, बिकॉज इट्स अ टोल फ्री नंबर, जो हम लोग नंबर अभी ये सेशन खत्म होगा तभी हम लोग वो नंबर भी यहाँ पे फ्लैश करेंगे, तो यहाँ पे जो जो लोग जुड़े हैं अगर उन्हें कोई समस्या है वो भी उसका समाधान ले सकते हैं। बट मैक्सिमम हमने देखा है कि चिंता, ये एंजाइटी बहुत कॉमन हो गया है। मतलब आज एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट, कि अभी कोविड की वजह से तो बहुत ज्यादा हाल बुरा है सबका, तो वी हैव एक्सटेंडेड आवर हेल्पलाइन नाउ फॉर एवरीवन, मतलब सीनियर सिटीजन भी उसका लाभ ले सकते हैं। अभी एज या फिर पेरेंट्स या बच्चे ऐसा ही नहीं है, एनीबडी एवरीबडी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस। So I just wanted to tell, since we have almost 200 से ज्यादा लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। So according to you it's okay to be anxious sometime, right? And so can you just help us out कि अभी अगर कोई somebody is going through this anxiety issue, तो what are the different types of these issues or panic attacks, like symptoms, उसके symptoms
हमें हमें कैसे पहचान सकेंगे हम लोग ये सिम्टम्स को? हाँ, तो कभी कभी पहले जो पैनिक अटैक होता है, जो सीवियर एंजाइटी होती है, उसमें छाती में धड़ धड़ करना, या सांस फूलना, या फिर हाथ पैर कांपना, या पसीना छूटना, या कुछ बोल नहीं पाना, या फिर सर भारी हो जाना, या ऐसे ब्लैंक होने के जैसा, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं एग्जाम में जाता हूँ तो सडनली मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे कुछ करने का सूझता नहीं है। सो ये जो है, ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स है। ये एंजाइटी, माइल्ड एंजाइटी में भी होते हैं। तो ये जब ये बार बार होने लगते हैं, अभी स्पेशली पैंडेमिक में मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं, वो दूसरे डॉक्टर्स ने भेजे हुए भी आते हैं, कि क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लम के लिए, मुझे सांस फूल रही है, क्या ये कोविड तो नहीं है, और वो डॉक्टर, या फिर मेरी धड़कन तेज हो रही है, क्या कुछ हार्ट अटैक वगैरह है क्या, या चेस्ट पेन हो रहा है। पर ये सब एंजाइटी के भी हो सकते हैं लक्षण। तो ये एंजाइटी जब भी आपका फिजिकली पूरा नॉर्मल है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ टेंशन ले रहे हैं क्या, मतलब जब भी आपकी सोच ज्यादा निगेटिव होने लगती है कोई भी चीज को, आप इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तो फर्स्ट स्टेप इज स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब कि वो ढूंढते हैं, अरे सिर्फ मेरे गले में कुछ हो रहा है क्या, ये कोविड हो गया है, या फिर अरे मुझे ये पढ़ाई में ये चैप्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा क्या। ये स्कैनिंग चालू होता है। फिर छोटी सी चीज को एक बड़ा बन, हम लोग राई का पहाड़ बनाना बस बोलते, छोटी सी चीज को, मतलब छाती में दर्द है तो ये एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, ये नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, पर हम इसको नाम लेते अरे ये हार्ट अटैक तो नहीं है ना। तो ये जो राय का पहाड़ बनाना, और अगर मैं मर गया तो ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग, ये तीन जो है, ये एंजाइटी के क्लासिकल थॉट्स है, विचार है क्लासिकल। अगर ये निगेटिव थिंकिंग आ रहा है तो ये चिंता है, ये चिंतन नहीं है, ये एंजाइटी बुरी है। तो इसकी आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और ये सोच बार बार होने से फिर हमारे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन चालू होता है कि एड्रेनालिन सेक्रेट होता है, और ये एड्रेनालिन सेक्रेट होने से फिर हमारे बॉडी में ये ब्रेथलेस होना, हाथ पैर कांपना, ये सांस फूलना, ये होता है। इसको हम फाइट फ्लाइट या फ्रीज मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी एक तैयार होती है कि हमसे उससे मुकाबला करना है, या ये सिचुएशन से हमको भाग जाना है। अब इसके वजह से फिर अगर ये बार बार होने लगा तो एक निराशा जैसी आ जाती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये सोचते रहते। फिर इसका इफेक्ट काम पे होता है कि कोई भी छोटा सा काम, जो हम मामूली काम जो हम दिन में करते हैं, उसके बारे में भी ज्यादा सोचने लगते हैं। सुबह उठने के बाद अरे आज मेरा दिन कैसे जाएगा, ये मीटिंग में अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, या आज टीचर क्या पूछेगी, मैं आंसर दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, फिर लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं आंसर किया, मैंने कुछ भी नहीं एग्जाम में लिखा तो। और फिर एक अवॉइडेंस बिहेवियर भी होने लगता है कि नहीं स्कूल ही नहीं जाना है, या काम पे ही नहीं जाना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये सिम्टम्स हम लोग देख रहे हैं कि 10-15 दिन के ऊपर ये सिम्टम्स 2-3 वीक से ऊपर हो रहे थे, तो डेफिनेटली इसकी जांच फिर डॉक्टर के पास जाके करानी जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उनके पास जाके आपको दिखाना जरूरी है। तो डॉक्टर फिर जांच करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर, अभी पता नहीं आपका क्या अनुभव है, लेकिन हमें तो ऐसा अनुभव आता है कि हम्म। लोगों को लगता है क्या मैं क्या पागल हूँ क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए। जो दिमाग का डॉक्टर जिसे हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, तो ऐसे बिकॉज आई थिंक अभी तक हमारे सोसाइटी में एक सोशल टैबू है। अगर बीमार है, बुखार आ रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा उदास है, बात नहीं कर रहा है, या फिर ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, सुन नहीं रहा है, बहुत तोड़फोड़ कर रहा है, तो ऐसे समय पे उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि इसको जरूरत है किसी एक्सपर्ट की, कि ऐसे डॉक्टर की जो उसे उसके बिहेवियर के बारे में उसको उसका इलाज कराए। तो आपका इसके बारे में व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस है?
यस, जैसे जब भी मैंने प्रैक्टिस चालू की थी तो ये ट्रेंड जो आप बोल रहे हो कि सोशल टैबू रहता है, वो बहुत था। कि पहले जो मेरे पेशेंट्स आते थे कि हाँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ उसको कि कोई जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन है, ये तो उसका नेचर ही है गुस्से वाला, ऐसे। पर अभी ये ट्रेंड बहुत सा बदलते जा रहा है कि अभी लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, उनमें समझ थोड़ी सी आती जाती है। फिर भी हाँ, कुछ हद तक ये अभी भी वही कंसेप्ट है कि नहीं, ये हो नहीं सकता, मतलब ये क्या है, पागल हूँ मैं, थोड़ा पागल थोड़ा ही हो गया हूँ कि मुझे ये देख के जा रहे हो आप, वो ये तो नॉर्मल है, ये सब होता है। पर इसके लिए हमको अवेयर, जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हो, आप फेसबुक लाइव पे डाल रहे हो, तो इससे ये इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ता जाता है कि क्या ये मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं क्या। हर एक मेंटल प्रॉब्लम होना मतलब ये पागल है ऐसा नहीं है। ये तो एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में, जैसे हम फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स में सारे सारे बीमारी से लेके, मतलब अगर सर्दी खांसी के बीमारी से लेके कैंसर तक बहुत सारी वैरायटी है, सीवियरिटी है। वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी सीवियरिटी रहती है, माइल्ड से लेके सीवियर। तो ऐसा माइल्ड एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हो कि उसके ऊपर चपा दिया और उसको नहीं। अगर हमने राइट टाइम पे इसका इलाज ढूंढा, उनको गाइड किया, उनके विचारों में परिवर्तन लाया, तो ये काफी हद तक ये बहुत कंट्रोल में और रिवर्स पूरा हो सकता वंडरफुल। तो आई थिंक हमारे जो प्रेक्षक आज ऑडियंस यहाँ पे जो जुड़ गया है वो सुने और समझे कि अपने मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, और जरा भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको जरूरत है किसी की सहायता की, तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए, आप हम तक पहुंचिए। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हम लोग देते हैं, इसका एक भी रुपया हम लोग चार्ज नहीं करते, बिकॉज हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। और अगर आपका दिमाग, हमारा अगर दिमाग तंदुरुस्त होगा तो पूरा परिवार सुखी रह सकता है, क्योंकि अगर किसी का एक का बिहेवियर अगर गड़बड़ है घर के अंदर, तो पूरे परिवार को उसकी बहुत तकलीफ होती है। तो अभी बात करते हैं बच्चों की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैं आज देख रही हूँ। तो डॉक्टर, कैन यू टेल अस कि बच्चों में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा एंजाइटी से गुजर रहा है? है। हाँ, एक तो पहली बात है कि बच्चे में कभी कभी दो तरह के एंजाइटी हो सकती है। एक तो पहले वो चुप चुप रहने लगते हैं, या फिर नहीं मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स भी करने लगते हैं, उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगता है। या फिर दूसरा एक्सट्रीम भी हो सकता है कि उनमें चिड़चिड़ ज्यादा बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ने लगता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। अगर ये दोनों एक्सट्रीम्स अगर आपके बच्चे में आप देख रहे हो कि उसके बिहेवियर में चेंज होने लगा है, या तो वो बहुत बहुत बैठने लग रहा है, बहुत डर लगने लगा है उसका, उसकी नींद बराबर से नहीं हो रही है, वो अकेले बैठ के बहुत सोचने लगता है, या स्कूल अवॉइड करने लगता है, दूसरा अगर गुस्से करने लगता है, या फिर उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल इसमें ज्यादा ड्रॉप होने लगता है। तो ये वार्निंग साइंस हम समझ सकते हैं कि ये अगर कभी कभी पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है उतना नोटिस करने में, तो फिर टीचर्स बोलते हैं कि जरा आपके बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसका थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। अगर पेरेंट्स को टीचर से ये कंप्लेंट आए, तो not necessarily you have to just question them immediately कि what are you doing in school, why your teacher is complaining about you, rather than asking them, scolding them, just ask them nicely कि what is happening, क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसे मत पूछो। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानी है। बच्चे बात करते हैं, अगर आप पूछेंगे तो बच्चे आपसे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, उनको चांस दीजिए। पर उनसे साथ बैठ के एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे तभी, तब वो बात करेंगे। बात करने के बाद, उनकी परेशानी समझने के बाद, फिर आप आपके पेरेंट के रोल में आ जाओ और उनको गाइड करो। गाइड करते वक्त एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्लीज 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 डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीबडी एल्स, not to the other kids in the school or other kids anywhere, not to the siblings.
और नॉट टू यू ऑल्सो कि हम ऐसे करते थे, हमें भी परेशान, हमने भी किया था, नहीं. Just take each child as individual being. He is or she is special in yourself or himself. So understand your child is special, unique in its own way. And accordingly you guide. या वंडरफुल. तो इनफैक्ट डॉक्टर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम लोग फ्री पेरेंटिंग सेशंस भी करते हैं Hmm. स्कूलों में जाके. तो बहुत बार मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ कि आप बच्चों से बातें करते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ करते हैं ना, हम लोग बातें कम्युनिकेशन करते हैं ना. बोले क्या कम्युनिकेशन करते हैं, तो पूछते हैं डब्बा खाया क्या, स्कूल में क्या पढ़ाया. ऐसे उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, उसको बोलते हैं इंक्वायरी करना, जो पुलिस करती है ना इंक्वायरी, वो करना है. तो कम्युनिकेशन आज इतना कम हो गया है बच्चों में और पेरेंट्स में. आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है कि आज सब लोग इतनी चिंता करते हैं, एंजाइटी अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं. क्योंकि अगर घर के अंदर हमारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो बहुत सी चीजें वहीं सुलझ जाएंगी. तो जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो प्लीज बच्चों के साथ बच्चा बन के कम्युनिकेट कीजिए. अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आपका उसके साथ रवैया 10 साल के बच्चे जैसा ही होना चाहिए, ना कि मैं 30 साल की हूँ और वो 10 साल का है. तो ये डिफरेंस आपको वहां पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करते हैं बच्चों से. तो या सो डॉक्टर, कभी हमें मतलब अगर बच्चा मेरा उदास है, बात नहीं कर रहा है, तो कभी मुझे इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा ठीक है मैंने बात करके तो देख लिया उसके साथ, लेकिन अभी ये मेरे मुझे हैंडल नहीं हो पा रहा है और मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है. तो वो क्या हमारे जो ऑडियंस है उनको आप बता पाएंगे कि कभी हमें एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी होगा? So पहले जैसे आपने कहा कि expectations, I want to point out to that first कि हम अपने बच्चों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पर ये एक्सपेक्टेशंस क्या वैलिड है, ये भी हमको चेक करना है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हम कभी इंटरवेंशन करें कि कभी ले, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू ओपन अप टू योर चाइल्ड फर्स्ट. कि हम देख रहे हैं कि थोड़े दिनों से आपका नेचर थोड़ा बदलता जा रहा है, आप स्कूल में जाने से ये कर रहे हो, हम समझ सकते हैं कि कुछ परेशानी है, तो आप क्या बात करके हमसे बात करना चाहोगे, कुछ दिक्कत है, कुछ टीचर्स का प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, अभी ऑनलाइन डिफिकल्टीज जा रही है, तो उसके बारे में कुछ है क्या, वो बताओ. उनसे पूछो कि अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको किसी काउंसलर से मिलना है, किसी के और को साथ मिलके आपको बात आपकी शेयर करनी है, तो आप इजीली शेयर कर पाओगे. तो आप उनसे पूछो पहले. और अगर फिर भी वो ना माने और उनका बिहेवियर, उनको दिन 1-2 दिन दे दो. आप सामने बैठे हो, अभी मेरे पास साथ बोलो क्या प्रॉब्लम है, नहीं बोलेगा बच्चा. उसको पहले ये बताओ कि हम तेरे साथ में हैं, हमने समझा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. उसको 1 दिन दे दो, 2-3 दिन दे दो, वो आपको अप्रोच करेगा. अगर फिर भी अप्रोच नहीं किया, वापस से उसके साथ बात करके देखिए. फिर भी नहीं बात की, फिर उनसे बोलिए कि अगर आपको हमारे साथ बात करने में कुछ दिक्कत लगती है, इफ यू फील नॉट कंफर्टेबल विद अस टू टॉक टू, नॉट ओपन टू टॉक टू अस, then we can arrange for something. We'll take you some to talk to someone. You can talk to that person. Not कि वो कुछ आपका इलाज करेगा, but you can talk to that person. You can open up to that person. And then you can take to the psychologist or something. What happens most of the time in my practice, I've noticed कि parents सीधा बच्चे को लेके आते and they don't tell the child where they are taking. And children nowadays, from the 10th standard, 10 years of age, they are very well aware of what the counselors are. From 8, 9 also, they are very well aware of. Because in most of the schools, there are school counselors also. So they know, and they don't come to know from their colleagues also, their friends also. So they know and they understand that there is somebody who can listen to them, who can understand them. They just need to open up to.
So now let's come to your hypnotherapy. Since you are specialist in that, so diagnosis and treatments role of hypnotherapy in anxiety management. अगर आप इसके बारे में हमें बताएंगे, it will be very nice. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हिप्नोथेरेपी, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस यहाँ पे आज है, आई डोंट थिंक उन्होंने कभी सुना होगा कि हिप्नोथेरेपी के बारे में. तो इनिशियली व्हाट इज हिप्नोथेरेपी, इफ यू कैन टेल अस अबाउट ब्रीफली, and then its role and how it is so effective in anxiety management. Sure. Hypnotherapy is my specialty and my favorite subject also. So hypnotherapy के बारे में बहुत सारे misconceptions है लोगों में अभी. Hypnotherapy is a professional medical therapy, you can psychotherapy. It's a form of psychotherapy. जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, EMDR थेरेपी होता है, वैसे ही हिप्नोथेरेपी एक साइकोथेरेपी है. इसमें हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस की स्टेट को, मतलब ट्रांस स्टेट को, मतलब इट्स अ फोकस्ड अटेंशन, कंसंट्रेशन. हिप्नोसिस स्टेट, ट्रांस स्टेट मतलब मेडिटेशन की जैसी जो स्टेट रहती है, जिसमें आपका एक फोकस्ड अटेंशन रहता है, पूरा एक ही चीज पे आपका सब ध्यान, पूरा ध्यानावस्था, इन सिंपल वन वर्ड. फिर ये अवस्था को हम यूज करते हैं हमारे थेरेपी में, कि ये अवस्था को हम कैसे यूज करें हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारे विचारों में परिवर्तन लाने के लिए, हमारे विचारों को जानने के लिए कि कैसे पहले हमारे विचार मन में आते हैं या मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम हिप्नोथेरेपी में सिखाते हैं. और एक सेशन में फिर हम देखते हैं कि ये विचार कहाँ से आए, इसका मूल क्या है, और फिर वो मूल को, मतलब अगर मैं हेल्पलेस फील करता हूँ तो कहाँ से मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ. किसी को मैंने देखा था ज्यादा बीमार हुआ था, या फिर अगर स्कूल एंजाइटी है तो कभी से ये एंजाइटी हुई, क्या कभी कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि किसी को डांटते हुए देखा था, परफॉर्मेंस में देखा था, और उसकी वजह से ये एंजाइटी तभी से डेवलप हुई है कि मैं आई एम नॉट गुड, ऐसा फीलिंग आने लगा, और उसकी वजह से फिर ये चालू. तो ये फिर हिप्नोसिस में हम थॉट प्रोसेसेस और खुद के जो बिलीफ सिस्टम है वो हम बदलना चालू कर सकते. इसमें माइंड कंट्रोल सीखा जाता है, आपको कोई कंट्रोल में नहीं लाता. आप खुद के माइंड को खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये हम सिखाते हैं आपको. और ये जो थेरेपी करते हैं, जो इंस्टीट्यूट है मास्टर योर माइंड सेंटर ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस, सो हम यहाँ पे मेडिकल हिप्नोसिस करते हैं. मेडिकल हिप्नोसिस मतलब ओनली फॉर द मेडिकल डिसऑर्डर्स, नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल, नॉट healing and touch, but this is with using the medical techniques like cognitive therapy, mindfulness techniques, and that we use to heal the patient, to treat the anxiety, depression, and other psychosomatic disorders also. Then self-performance, sports performance, social anxiety, for that also it is very helpful. Now, for coming to the anxiety disorders, how it helps. तो जैसे एंजाइटी में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो है जो फिजिकल सिम्टम्स होता है, कि जब भी ये पाल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस, एंजाइटी अटैक चालू होता है तो वो एक पेशेंट को लूप में रखता है, कि ये उसके वजह से ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा डर बढ़ते जाता है, उसके वजह से फिर और ये फिजिकल सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं. तो हिप्नोथेरेपी में हम फर्स्ट सेशन में उनको रिलैक्स कैसे करना है, खुद को रिलैक्स कैसे करना है, माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है, इसका ट्रेनिंग देते. इसका सेशन होता है कि हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी, हाउ टू रिलैक्स योर माइंड. एंड वंस यू लर्न दैट, देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स कि थॉट्स में, कि ये थॉट्स मेरे कहाँ से आए, कौन से टाइप के थॉट्स है. अच्छा, ये एंजाइटी के थॉट्स है जो निगेटिव प्रेडिक्शन करते हैं, जो कैटेस्ट्रोफाइजिंग है, जो निगेटिव थिंकिंग है, वो कैसे चेंज करें टू पॉजिटिव थिंकिंग. हाउ टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. सो इट वर्क्स एट द माइंड लेवल as well as relaxing at the physical level to thereby take control of yourself to deal with anxiety.
Wonderful. I think, can you share maybe one of the success story? Sure. Yes. I'm sure you have so many success stories, but related to maybe our children or something, since we deal with children a lot. I mean, हमारा जो target group है वो बच्चों का है. तो एक आध सक्सेस स्टोरी जो आपके मेडिकल हिप्नोथेरेपी की वजह से कैसे किस तरह से आपने उसका मे बी जीवन बदल दिया. Yes. So I'll tell you, she came to me when she was I think 23 or 24 years old, and she was into designing course. So it's a new course that it's recently been done. It's product designing course. So उसमें products में designing वगैरह है. And every time she used to submit the project, she would get hyper. She would start crying. I can't do it. I will not be able to submit my project. Please give me the sickness certificate. And mummy ko bithana, you help me, because mummy is also architect, so she would help her in some designing part or something product designing. And then her mother got me, I'm frustrated now. I can't do anything about her. Every time, anytime project comes, she keeps crying, and at the moment, just that. So then when we started with the session, the first session was to help her to, during that time, how to relax her, so that her thinking calms down and she can be more creative. Because when this anxiety is there, anxiety is like the moss on the water surface. When there is a moss on the water surface, पानी के ऊपर जो moss बन जाता है, तो पानी में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी गई है. जब भी ये मॉस हट जाएगा, पानी में अपने आप अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और अपने आप पानी के नीचे तक क्या है वो देख सको. वैसे ही है ये जो एंजाइटी के निगेटिव थॉट्स है, ये आपके मेमोरी पे, आपके परफॉर्मेंस पे आया हुआ एक मॉस रहता है. वो हट जाएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है, कि आपकी जो एबिलिटीज है, आपकी जो मेमोरी है, वो क्लियरली आपको एक्सेस होती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरा क्रिएटिविटी पूरा है, दिखाई दे रहा है. So that we did in the first session, to first to relax, learn the relaxation, and identify what thoughts come. Okay, these I won't be able to do it, then I will fail in my exams, I will never be able to do a job. So identify these anxiety thoughts and say no to. In second analytical session, under hypnosis, under that calm state, peaceful state, I asked her, where is this coming from? Then she went into her very young age, when she was in the class and the teacher used to shout. He shouted at the other student in front of the entire class. But she developed that anxiety. If I will do any mistake, I will face the same like that girl. And there that performance anxiety started. So every time the exam used to come, every time there is any project submission, she used to fear, what if I will fail? What if I won't be able to do? And I will be insulted, humiliated in front of the entire class. Then we started changing that in the reprogramming next two sessions, to let her know what is good in you, what are the abilities in you that you have. You are a creative person, you have good marks there, you are hardworking. So make her realize this I. Because if you see what is anxiety is, this is like a convex glass. On one side, your I is very small, minimizing the I and maximizing the situation. तो जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ी लगती है और आई स्ट्रांग होता है. थेरेपी में फोकस है कि आई को यू सी एज इट इज, like changing the convex sphere to the plane mirror. See the situations as are. Situations be, rather than maximizing, see what it is actually happening. So I can do it. I can handle it. This is what is not चिंता but चिंतन, कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं ये कर पाऊंगी और मैंने ऐसे किया तो ये ऐसा होगा. तो पॉजिटिव थिंकिंग, प्लानिंग इन अ राइट डायरेक्शन इन पॉजिटिव. You're putting your best efforts as per the required efforts. हाँ, अगर मुझे 5 घंटे काम करना है, 5 घंटे स्टडीज करना है, तो then I will put my 5 hours.
then the result is not in my hands, but I am doing my best. That is, I am confident about. Situation को okay, क्या फर्क पड़ता है? It's not a big deal. It's one project, and I know I can do it. I'll take the help of my mother if needed, but let me first at least do it and see. No, this kind of changes when we started building up that reprogramming sessions. So in 4 or 5 sessions, once a week session was there. Now she has remarkably improved. And she's doing her projects and she's in London and handling her because her mother was worried that I can't send her. She wants to go for post graduation to London and I can't send her there because I can't go and fly to London every time. But she's alone handling, managing over there very well, doing her post graduation. या वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर. सो क्या आप हमारे जो ऑडियंस यहाँ पे है उनको भी कोई स्ट्रैटेजीज बताना चाहेंगे? तो उनको भी मतलब इंस्टेड ऑफ चिंता को चिता की तरफ लेके जाने से अच्छा है कि चिंतन करे और हमारी जिंदगी बदल दे. तो ऐसे कोई कोपिंग मैकेनिज्म्स या फिर स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल आवर एंजाइटी? Yes, sure. So first of all, एंजाइटी जैसे हम बोलते हैं कि चिंता से चिंतन, ये फर्क होता है हमारी सोच का फर्क है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है. तो हमारे जो थॉट्स है उनको चेंज करना है, कंट्रोल में लाना है. तो ये 3 टाइप्स में या 3 वेज में हम कंट्रोल में ला सकते हैं. फर्स्ट इज द थॉट्स अबाउट आई एंड नॉट आउटसाइड. Like not what happens mostly is they are trying to control the situation. कि कोविड को कैसे कंट्रोल करें, खुद का प्रोटेक्शन बढ़ाओ, खुद को प्रिवेंशन दे दो. That you can do. I can do it. I will work on myself. So first the I thoughts. Second is not about the future thoughts, the racing of the thoughts. No, when you think about future, classical anxiety thoughts start with what if thoughts. What if this will happen? What if that will happen? It's all about the negative future. Rather than that, bring your attention into the present moment. Now what I can do? Now what I have? I'm good. I have hard working capability. I'm good in my intelligence. Use that. Third is from negative to positive. कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा. No, I will let me see it. Let me do it and see. I can do it. No? और ये हो सकता है. मैं करके तो देखूं. So first is I thoughts, what I can do rather than controlling the situation. Second is the quantity of thoughts rather than racing in the future, the present moment. And this is the third that you move to. So these are the type of thoughts you from chinta to chintan. This way you can start thinking then. So this you can change it in 2 ways again. Is mental training. Just like somebody is very fat, like say 110, 120 kgs and he goes to gym. So the gym instructor बोलता है कि आपको ये वजन कम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कार्डियो करना पड़ेगा, रोज 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में 3-4 बार करो और आपको मसल भी उसके साथ बिल्ड करना पड़ेगा. एग्जैक्टली सेम वे मेंटल ट्रेनिंग भी रहता है कि कार्डियो मतलब क्या है कि जो वेट शेयर करना, एक्स्ट्रोवर्ट. मतलब जो जब भी आप नोटिस करते हो कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो तभी के तभी वो बदलते जाए. निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलें. थॉट रिकॉर्ड चार्ट, थॉट जर्नलिंग विकल्प. बट चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव थॉट्स, टू द मोर पॉजिटिव सेल्फ थॉट. Second is the muscle training. Is consciously developing this positive self, not waiting for the situation to arise. Like in that case of that girl, all the time when she starts thinking, okay, I can do it. See, I have achieved this. See, daily, every time she used to make a note of, okay, I've done this good job, I've done this good, so I'm capable of it. No, doing this, reinforcing your self-belief. This is the thought record chart you can help or changing your thought pattern. Another way is relaxing your body and mind with the mindfulness exercises and relaxation exercises that you can do daily.
Whenever we want to chill or we want to relax, we just pick up a coffee cup and we pick up a tea cup and just, okay, 2 minutes का refresh हो जाएगा. Along with that, I won't say instead of that if you want, but along with that, just take this 2 minutes break of mindfulness exercise. What is mindfulness? Is bringing your attention into the present moment and non-judgmentally accepting the moment as it is. So for that, first bring your attention into what is happening around you. It's a five sense exercise because we perceive our world through the five senses. तो पहला सेंस है ओके दिखना देखना, मतलब ओके मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे पेन है, वॉच है, ये है वो है, नोटिस करना. फिर साउंड्स, ओके किसी की आवाज सुनाई दे रही है या मोबाइल की आवाज है, एसी का आवाज है, ये नॉइज क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, सिर्फ नोटिस करो कि ये चीज है. स्मेल, टेस्ट, टच, फील द क्लॉथ, फील द प्रेशर, दैट. फिर उसके बाद में वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ वेयर वी आर इन द प्रेजेंट. फ्रॉम आउटर ब्रिंग योर फोकस टू योरसेल्फ. Breathing, because we don't do breathing conscious, it's happening in our body all the time. So just be aware of this breath going in and out, maybe by focusing on to your chest and abdominal movement, or maybe just focusing on the air that you feel going in and out of the nostril. And with that, just maybe say relax with every time you notice you're just breathing in. This takes hardly 2-3 minutes. But if you will do that after every 2 to 3 hours, this helps you to learn to put a break to those thoughts in which anxiety it's running all the time in the future or in the past. So this helps us to bring them back into the present moment where I am fine, I can handle it, I can do it. This reinforces. Along with that, then daily, maybe once or twice, sit with yourself, just like follow this breathing with complete body relaxation. Relaxing, like okay, relaxing from toes, your feet. Slowly saying to yourself, okay, I'm relaxing my feet. I'm relaxing my thigh muscles, each body part till your head. And now my whole body is relaxed. And I feel very calm, very relaxed. This relaxation helps you to keep those thoughts under control, to be more aware of your thought process. Because when we are into the anxious mode or the past mode, we are not seeing our thoughts, watching our thoughts. We are getting like entangled into our thoughts. So this emotional mind and intellectual mind, all the thoughts are entangled. I think as a family together also they can do these exercises, right? Yes, yes, yes. And what about physical? Or even alone also they can do it. That would be better if everybody takes out their own time. Because when it takes out family together, then if somebody has a performance anxiety, they will be fearful about, okay, what my mom will say, she's watching me. Am I doing it correctly? I have to sit straight and no. Take your own time and do it. So instead of watching TV together, this is something better what all of you can do together so that आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Yes. So I think it was really wonderful listening to you and giving, thank you so much for giving us all the tips about anxiety, how to control our anxiety और चिंता से मुक्त होके कैसे चिंतन के द्वारा हम हमारे जिंदगी को सुधार सके ताकि we can create a happy environment for our family. So before we proceed ahead and we open the forum for anybody and everybody, अगर आपको डॉक्टर के साथ बातें करनी है, उनको कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, तो हम लोग आपको अभी मौका दे रहे हैं, तो आप आपका माइक अनम्यूट कीजिए और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू डॉक्टर. And meanwhile, let me just show our helpline number. Shri, can you please share the helpline number? So आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मंडे से संडे तक रोज सुबह 9 से रात को 9 बजे तक खुली है. हमारे काउंसलर्स
Thank you. And now over to the forum is open. Miss, can you share once again the online number? Yeah. Can you please share one more time? Fine. Can you share one more time? Can you Ma'am. Yeah. Thank you, miss. Dr. Dipali से question Thank you, Aarti teacher. Thank you, Dipali teacher. ये आपके पेरेंट्स यहाँ पे अगर है, आपके मम्मी पापा है या फिर Aarti, can you unmute yourself? या अगर आपको बात करनी है डॉक्टर से तो आप चैट बॉक्स में डालिए तो हम आपको अनम्यूट करेंगे. अभी सबको अनम्यूट किया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आवाज हो रहा है. Yes, anybody has any questions, doubts? So I think mainly all our kids. तो बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको एग्जाम के बारे में एंजाइटी हो रही है या फिर चिंता हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग और स्टडी के बारे में चिंता अगर हो रही है तो आपको कैसे आपका ख्याल रखना है, और आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप ये नंबर पे बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं. हमारी लाइंस खुली है और ये टोल फ्री है, तो आपके मोबाइल का भी वो पैसा नहीं जाएगा वहां पे. So anybody would like to ask any question? No, I think all are satisfied. So thank you so much, Dr. Dipali. It was really, really wonderful having you over here on our session, and thank you so much for explaining us so beautifully about anxiety and how to take care of our mind, our emotional well-being, so that we will be, happy individual and spreading happiness all over. So thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting. Thank you. Thank you.